अच्छी बात है। गजब है साहब, अजब गजब ये स्थिति, इतने के बावजूद ये स्थिति है। चलिए How did your daughter Nimisha get indoctrinated? Did you see it happen? Did it come as a surprise? Were there gradual changes over the months? No, actually, again I want to tell about certain colleges because my daughter was studying for BDS in Century Dental College in Poinachi at Kasaragod district, and it is running. I think it is under a Mujahideen group. And while she was studying there, a man named Sajar Salim, who was residing at Artingen, and he was with her in her entrance coaching class, and he followed her, and later this Sajar joined Jipmar Medical College for MBBS, but he visited my daughter and they had some love affair going on, and she did not open it to me, but his mother came to meet my daughter, and she promised that if you marry my son Sajar, you must convert to Islam. Like that it went, and after converting by 2013 at Mujahideen Center, Salafi Center under Mujahideen group in Trivandrum, he manipulated her and she became pregnant for 1 month. And later he aborted, and later he forsaken her. That also she did not open it to me. But the girls around her college, I am not mentioning that all Muslims are like that and all, but the girls who were studying along with my daughter prevented her from telling these things to me. No, so the RSS and those associated with the Sun worldview call this love jihad. Do you think this is love jihad, or do you think your daughter voluntarily and of her own volition fell in love? Because later, now 1 month before, her classmate confessed me that, Andy, I should have told this to you before Nimisha's migration, because after conversion, a person will marry her, will manipulate her, and then forsaken her. And after that, the conversion centers keep on calling this girl, means that my daughter, that if you will not marry another converted man, Allah will reject you to Islam. Like that the talks went on, and this friend is in front of this friend, the talks went on. Like that, a lady named Khadija, and she is the auntie of Dr. Sajar. She also accompanied Dr. Sajar to Kasaragod and insists my daughter to marry a converted guy, that is this Vexel. You think of it as a well-entrenched conspiracy called love jihad? Yeah. My daughter to... You think of it as a well-entrenched conspiracy called love jihad? Yeah. Think of it as a well-entrenched conspiracy called love jihad? Yeah. चलिए ये स्थिति है, ठीक है ना। अब आइए, अब और आगे देखें इस पूरे मैटर में हुआ क्या। इस पूरे मैटर में एक सिंपल सी बात है, ये मोहतरमा है, इनकी सुपुत्री जो है लव जिहाद में फंस गई। तो ये पूरी जो एक थ्योरी जो इनकी है वो बता रही है किस प्रकार से कैसे फंसाया जाता है। एक कॉलेज का नाम लिया, सेम केस हमारे भी एक मित्र के साथ हुआ। फेसबुक पर वो मुझे मेरे साथ उनकी फ्रेंडशिप हुई और तमाम सारी राष्ट्रवादी विचारधारा की थी, तो बातचीत होती रही। वो बाद में उन्होंने बताया कोई लड़का उनकी लड़की को परेशान कर रहा है ऐसा वैसा। मैंने कहा अच्छा पता करते हैं भाई क्या मैटर है। मामला क्योंकि दिल्ली का ही था तो मेरे लिए आसान था। तो मालूम चला उन्होंने बताया साहब ऐसा है, ये है वो है, और जो हॉस्टल वाले हैं वो फलान का, हॉस्टल की वार्डन भी साथ में मिली हुई सब कुछ। हमने एक बार लड़के को फ़ोन करवाया पुलिस से, लड़का ने थोड़े दिन के लिए चुप हो गया। लड़का उसके बाद फिर से दोबारा शुरू हो गया। फाइनली क्या हुआ कि फिर उस लड़के को पुलिस ने उठाया। रिटन कंप्लेंट हमने दी, बोले रिटन कंप्लेंट चाहिए, पुलिस ने उठाया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ करी तो मालूम चला वो बोला कि भाई मैं आज के बाद मैं अब तो कभी नाम भी नहीं लूँगा इस लड़की का। लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ था सीधा सीधा और लड़कियों से। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, बीच में एक जो लड़की थी, एक जो गैंग लीडर टाइप की नहीं होती, जो गुंडी टाइप की लड़की होती है, उसमें एक गैंग लीडर लड़की थी। वो लड़की बोल रही थी, बोले कि नहीं कोई नहीं, तुम इसके साथ करो ऐसा वैसा, कोई नहीं तुम इसके साथ जाया करो। वो लड़की अपने साथ लेकर जाती थी सारी लड़कियों को बाहर, जो खासकर जो एम गाइज हैं उनके साथ में वो सेटिंग कराती थी। वो खुद भी हिंदू थी वो लड़की, उसकी भी सेटिंग, उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो एम था, उसको पैसे भी देता था, गिफ्ट भी उसको बड़े महंगे महंगे मिलते थे, गोल्ड रिंग वगैरह भी थी उसके पास में, जो बाद में उसके पास से देखी। हालांकि मुकदमा नहीं कराया क्योंकि जो लड़की की जो माँ है वो तैयार नहीं हुई। वार्डन को जब बुलाया गया, वार्डन को जब लाइनअप किया गया, तब मालूम चला कि वार्डन खुद इन्वॉल्व थी इन सब चीज़ों में। क्यों, उसको भी पैसा मिलता था। तो ये जो लोग आते हैं ना, ये पैसा देकर आते हैं। पहले एक लड़की को फंसाते हैं, उसको पैसा वैसा देते हैं, उससे कहते हैं और अपनी सहेलियों को लाओ, ये करके एक एक करके आती है। हर जगह ये मोडस ऑपरेंडी है। और जो वार्डन है वो भी हिंदू ही थी, उसको भी पैसा जाता था बाकायदा, उसको पैसा मिल रहा है हफ्ते का हफ्ता। तो शी इज़ मोर देन इम्प्रेस्ड। ये एक कॉलेज की कहानी, MBA कॉलेज की कहानी बता रहा हूँ आपको। कभी इस पर पूरी बढ़िया सा लाइव करूँगा आपको, रियल लाइफ स्टोरी पर। गो आउट ऑफ इंडिया,
द कंसेप्ट ऑफ सरदार इज द बिगेस्ट फ्रॉड सपोर्टेड बाय इंडियन पॉलिटिशियंस। अभिषेक प्रसाद जी कहते अच्छा जी। नमो